Morning, sixth class. Bache, hope you all are fine at your home. So today in your English lecture, we are going to start chapter number 25 on your grammar book, that is homophones, right? What are homophones? This is the word here and here have similar sounds. The word bear and bear also have similar sounds, but they have different spellings and different meanings. Yeah, अब दो words हैं. There are two words. The first word is HAIR here, and the second word is HARE here. They, if we pronounce these two words, the words they have the similar sound, right? Here and here. Similarly, like that, the word bear, B-A-R-E, bear, and the word B-E-A-R, they also have similar sounds. But these are two different spellings and two different meanings, and their meanings are also different. What are homophones? The words that sound the same but are spelled differently and have different meanings are called homophones. You have to underline this line. वो जो वर्ड्स जिनके साउंड्स क्या हैं सेम है बट दे स्पेल डिफरेंटली एंड दे ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग्स, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. ठीक है. इन योर टर्म टू एग्जाम्स यू हैव टू लर्न ओनली 10 वर्ड्स. ठीक है. फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट, ACCEPT. इट इज़ अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज टू रिसीव, right? And second is, it sound same, EXCEPT, accept. That is proposition. This is proposition and its meaning is to exclude, right? The first accept is a verb and its meaning is to receive. Sentence is, please accept my wishes on your success. And second word is accept. All except Rashmi were present in the meeting, right? फर्स्ट एक्सेप्ट जो है उसका मीनिंग है कोई चीज़ एक्सेप्ट रिसीव करना, ठीक है, लेना, ठीक है, किसी को रिसीव करना. और दूसरा एक्सेप्ट है बाकायदा, मतलब इसके अलावा, ठीक है. और एक्सेप्ट रश्मि वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. सब रश्मि के अलावा सब मीटिंग में प्रेजेंट थे. देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट, बट देयर साउंड्स आर सेम. दे आर द होमोफोन वर्ड्स. Second word is affect and effect. The word starts from AFFECT, affect. It's a verb and its meaning is to influence. And second word is effect. Effect means outcome or result, right? First word is affect. The injury wouldn't affect her performance. अफेक्ट मतलब किसी के ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव डालना, ठीक है. एंड सेकेंड वर्ड इज इफेक्ट. इफेक्ट क्या होता है? द सॉन्ग हैड अ क्लैमिंग इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, ठीक है. इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, इसका भी मतलब क्या है? प्रभाव डालना, इफेक्ट करना जैसे. थर्ड इज एल्यूड, टू रेफर कैजुअली. एंड सेकेंड, the word is allude also, both are verbs. And second, allude, its meaning is to avoid or escape. Writers often allude to the dictionary and the robbers continue to elude the police, right? Fourth word is complement. Complement, to complete, and compliment, its meaning is to remark that express praise or एडमायरेशन, ठीक है. एडमायरेशन मतलब प्रेज करना किसी की, ठीक है, कोई वर्ड्स बोलना प्रेज के, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. एंड द सेंटेंस इज, द शू कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस. जो शूज़ है उसकी ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं, कंप्लीट लुक आ रही है, ठीक है. एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट हर कॉम्प्लीमेंट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस. उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, उसके जो रिमार्क्स हैं टू एक्सप्रेस माई प्रेज, वो मुझे हमेशा बूस्ट करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है. एंड नाउ द फिफ्थ वर्ड इज डेजर्ट एंड डेजर्ट. बोथ आर नाउन्स. फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ डेजर्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड विद वेरी लिटल वाटर एंड प्लांट्स. वो एरिया जहाँ पे बहुत कम जो होते हैं पानी और प्लांट्स पाए जाते हैं, दैट इज डेजर्ट. एंड डेजर्ट इज स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, right? Their spellings are different, their meanings are different, but we pronounce the words similarly, right? First is desert. Sahara desert is in Africa. And second is desert. The desert was much
बेटर देन द मील। डिजर्ट होता है जो हम स्वीट खाते हैं खाना खाने के बाद, दैट इज डेजर्ट, राइट। सिक्स्थ वर्ड इज सूट, SUITE, सूट, एंड स्वीट, SWEET, ठीक है। फर्स्ट इज स्वीट, सूट, SUITE, इट्स मीनिंग इज रूम्स इन अ होटल, ठीक है, स्वीट, right, and it is a noun. The sentence is they booked a private suite for the occasion, ठीक है। The word second is sweet, containing sugar, जिसको हम मीठा बोलते हैं। The pudding is very sweet. Seventh word is principal, principal and principal, spellings are PRINCIPAL, that is a chief, ठीक है, दैट इज अ हेड ऑफ योर स्कूल, प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल, PRINCIPLE, दैट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है, जिसको हम आदर्श भी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग है आदर्श। फर्स्ट है द प्रिंसिपल अटेंडेंस हैज़ टू साइन ऑन द फॉर्म, राइट। इसका आप इजी से सेंटेंस भी बना सकते हो, द नेम ऑफ आवर प्रिंसिपल सर इज मिस्टर हरदीप सिंह पुन, ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। दैट इज हेड ऑफ द स्कूल और चीफ, एंड प्रिंसिपल आदर्श, जिसको हम बोलेंगे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। दीज आर द आदर्श, मतलब जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल, राइट। एट्थ वर्ड इज काउंसिल, council, council is that is assembly, and council is advice. First word is council, it's a noun. Council, its meaning is assembly. His father is a member of the parents council, right. Second word is counsel. I thanked my mother for her sound counsel, right. Ninth is peace, 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 नो वायलेंस और काम, जिसको हम शांति कहते हैं, नो वायलेंस, राइट। एंड पीस, पीस इट्स एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पीस। द फैमिली लिव्ड टुगेदर इन पीस, पीस ये कौन सा हुआ, नो वायलेंस, जिसको हम शांति कहते हैं, ठीक है। और पीस क्या है, शी रोट द नंबर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अमाउंट ऑफ समथिंग, पीस इज अमाउंट ऑफ समथिंग, टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, राइट। Tenth word is hail, 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 it's a verb, its meaning is to come from a particular place, ठीक है। And second is HALE, hail, it's an adjective, its meaning is healthy, right. First word is HAIL and its sentence is two of my classmates hail from Germany, ठीक है। टू कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट्स मीनिंग इज दो मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। एंड द वर्ड इज HALE, इट्स मीनिंग इज हेल्दी। शी वॉज हेल एंड हार्टी टिल यस्टरडे, ठीक है, इट्स मीनिंग इज कि वो तंदुरुस्त है और हार्टी है कल से। तो यहाँ तक आपने 10 जो वर्ड्स हैं बेटे, यू हैव टू राइट ऑन योर ग्रामर नोटबुक and also learn the meaning and with their sentences, right. Thank you and have a great day.